we all know that we have assembled here to know more about cybercrime. Our most esteemed guest, DYSP sir, our academic director, Professor Sanjay Biyani, the friend, philosopher and guide, everyone is here with us. So I would like to request Professor Sanjay Biyani sir to please come up on the stage and welcome DYSP sir. So please. Council, Mr. Prahlad Kabra, Executive Member, People and Police Welfare Council, Mr. Saurabh Sharma, Technical Head, Ms. Roma Singhal, Lead Host, and Mr. Lalit Lohia, Public Relations Head, People and Police Welfare Council. Now I would like to request Rajendra Sharma sir, DYSP Cybercrime, Rajasthan, to please come up on the stage. Sorry? Okay. So I would like to request Mr. Arun Jain to please come up on the stage and take up the mic. Hopefully everyone of present here is using a smartphone. Yes, sir. Right. So क्या आपको पता है कि मोबाइल से क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? Have you taken any seminar or any sessions for this? So आप अभी कह रहे थे कि हमें पता है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो आप मुझे कुछ चीज़ें बताइए कि हमें नहीं करनी चाहिए। संजय सर ने कहा that you all are students of management, कि tomorrow you will be leading a team, right? आवाज नहीं आ रही है? Yes, sir. I hope all of you had your breakfast early morning today. Yes, sir. Right? तो आपने अभी अभी एग्री किया क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो अब मैं आपसे कुछ चीज जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग इतने छोटे नहीं हो, बच्चे नहीं हो कि आपको नहीं पता हो, तो प्लीज कम अप। Sir? Yes. So we do not use Wi-Fi from जो अभी लगे हैं 4G अवेलेबल है, cause उससे उससे हैक हो जाते हैं सेलफोन, उसको यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि आप उसके वेरिफिकेशन के लिए आपके पास सबका खुद का सेलफोन नंबर डालना पड़ता है, तो उसको वाईफाई को तो कनेक्ट नहीं करना चाहिए। और भी उसकी ब्रीफ हमारे टेक्निकल टीम देंगे, काफी सारे सजेशंस देंगे, they will give you a good bunch of data regarding it. Second, DYSP sir is there जो आपको पूरा अवेयर करेंगे लीगली। Then we take an interaction, right, session regarding this. Okay, so I am handing over to our host, Roma Singhal and Saurabh for this. So as the number of internet users is increasing in India, we all know that cybercrime is bound to rise. Do you all agree? Yes, ma'am. Okay. So data shows that India will have 500 million internet users by 2017. It is an alarming situation. India is likely to have 314 million mobile internet users by the end of 2017, and right now we just have 159 million users. Okay, so let's have a look at uses of internet in different fields. How many of you know what all do you use internet for? Give me something. One by one, I can hear. Okay, I'll tell you. We all use internet for trading, for defense, for electricity, education, banking, e-commerce. You all must be knowing very well. I know you all do internet shopping, right? Yes, ma'am. Okay. So let's also learn about the benefits of internet, or why do we use internet that often. Benefit of internet is it is always available, right? Vast range of information is there, easy to contact people, business exposure, payments are easier and all. But as it is said that every coin has two sides, so along with all these benefits, we also have many crimes associated with the internet. Do you all agree? Yes, ma'am. Okay, so let's have a look at types of internet crime. Some of them are cyber pornography, online gambling, cyber stalking, e-commerce crime, forgery, email, cyber squatting, and cyber squatting. Now these are some of them I know you must not be knowing. Like for example, you don't know about cyber
squatting, cyber squatting. So we have our technical head Saurabh. He will explain you about these in brief. आप में से कौन जानता है व्हाट इज फिशिंग? यस, Phishing is a technique in which we make a fake page and divert and make the user click on that link on that page and divert him or her on any other site, any malicious activity. Exactly. It is a vulnerability. एग्जैक्टली। तो इन्होंने कहा वो बिल्कुल सही था। फिशिंग मेनली होता क्या है कि जैसे आपकी फेसबुक आईडी है, आपकी फेसबुक आईडी की एक फेक पेज बना करके आपको मेल या एसएमएस के थ्रू भेजा जाता है। तो हमें पता नहीं होता कि वो फेक पेज है, तो हम उसको लिंक करते हैं, देन उसे ओपन करते हैं, यूजर नेम एंड पासवर्ड टाइप किया और वो जो मेल हमारा जो सर्वर होगा वहाँ पे आ जाएगा। मीन्स आप एक विक्टिम की तरह काम करोगे वहाँ पे, जहाँ पे आपका यूजर नेम और पासवर्ड चोरी हो चुका है। ये इसे फिशिंग कहते हैं। फिर स्पूफिंग, एनीवन? यस, Spoofing is making a mirror of anything. It may be come into identity spoofing or anything else. It is Yeah. just identity copying something. या स्पूफिंग मीन्स क्या होता है? एक सिंपल से एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मेरा मोबाइल नंबर है, मेरी आइडेंटिटी, अगर मैं किसी को कॉल करता हूँ तो मेरा मोबाइल नंबर वहाँ पे शो होगा, उसको पता चल जाएगा कि कौन कॉल कर रहा है। लेकिन अगर मैं उस आइडेंटिटी को हाइड कर दूँ या फिर मैं उस आइडेंटिटी को चेंज करके किसी दूसरे के नंबर से कॉल करूँ, इसे बोलते हैं स्पूफिंग। मीन्स अपनी आइडेंटिटी को छुपा करके और दूसरे की आइडेंटिटी को शो करना, इसे स्पूफिंग कहते हैं। DDoS अटैक, एनीवन नो? DDoS अटैक ये एक ऐसा अटैक होता है, आपको मालूम है? बताइए। Sir, DDoS attack is distributed denial of service attack. इसके अंदर जैसे अभी फ्लिपकार्ट पे भी हुआ था, जब तेलन की बुक आई थी हाफ गर्लफ्रेंड, तब उस पर इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट गई थी कि वेबसाइट क्रैश हो गई थी। सो इट इज़ दैट कि हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम से बहुत सारी वेबसाइट, मतलब एक ही वेबसाइट को बहुत सारी नंबर ऑफ रिक्वेस्ट रैंडमली सेंड करेंगे, तो वो फुलफिल नहीं हो पाती हर एक रिक्वेस्ट, तो तब वो वेबसाइट क्रैश कर जाती है। दिस इज DDoS attack. यस, हाँ, इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे अपने बियानी कॉलेज ये यहाँ वाईफाई चल रहा है, 50 लोग हैं यहाँ पे सपोज करो, तो 50 लोगों में से सबको इंटरनेट चाहिए, कोई चाहता है फास्ट हो, सब ये चाहते हैं, ठीक है। सिंपल सा मेरे पास मेथड क्या होगा कि मैं अपने यहाँ पे रहता हूँ अभी रैंडम वाईफाई या फिर रैंडम आईपी एड्रेस जनरेट करूँ और उस एक वाईफाई पे अटैक करूँ। इससे होगा ये, मेरा होगा एक ही कंप्यूटर या एक ही वाईफाई के लिए मोबाइल या समथिंग कुछ ऐसा, लेकिन मैं उससे चलाऊंगा कितने, जितने मैं चलाना चाहता हूँ उतने वाईफाई चला सकता हूँ। मतलब एक पे कई इंटरनेट के ऑप्शंस चलाना, जिससे कि काफी तेज स्पीड हो जाती है, इसे बोलते हैं। सेम ऐसे ही होता है ईमेल बॉम्बिंग। मींस हमारे पास एक ईमेल एड्रेस है जिसकी कैपेसिटी होती है, जस्ट लाइक जीमेल की कितनी होती है, किसी को पता है? जीमेल 10 GB होती है जीमेल की। अगर 10 GB से ज्यादा होगा तो जो मेल हमारे प्राइवेट हैं या फिर इंपॉर्टेंट मेल हैं वो ऑटोमेटिकली डिलीट होते हुए चले जाएंगे। तो उसकी सिक्योरिटी के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसको एक लिमिट दे देनी चाहिए कि इतने ईमेल के बाद जो आएंगे उन्हें रोक दिया जाए। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, तो जैसे सपोज मैं हूँ, मेरे को सामने वाले की ईमेल्स हटाने हैं, उसके पास कोई प्राइवेट मेल है, तो मैं क्या करूँगा, ईमेल बॉम्बिंग। ये क्या करता है, ये एक के बाद एक कंटिन्यूसली मेल सामने वाले विक्टिम को सेंड करता है। इससे उसका मेल बॉक्स फुल हो जाता है और उसकी जो प्राइवेट मेल या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेल है वो ऑटोमेटिकली डिलीट होते हुए चले जाते हैं, क्योंकि उनकी कैपेसिटी 10 GB ही है। Next, we move on to cybercrime victims. Our data says that every second, 12 adults are victimized. 12 adults. This is seriously alarming situation. More than 80% of cybercrime is done through social media and is never reported because we feel shy. We don't discuss it to our parents. We feel shy that हमने इस लड़के से फ्रेंडशिप कर ली, वो लड़का अब हमें हरास कर रहा है, फॉलो कर रहा है, हम सोचते हैं अपने पेरेंट्स को बोलेंगे, पेरेंट्स हमें फर्स्ट मौके पर ये बोलेंगे आपने फ्रेंडशिप क्यों की, ये गलती आपकी है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हम और ज़्यादा उसमें जाते चले जाते हैं। इट्स बेटर आप फ्रेंड से डिस्कस करो, पेरेंट्स से डिस्कस करो, या जिसको आप अपना मेंटर समझते हैं, जिसके साथ आप थोड़ा कन्वीनियंट फील करते हैं, उसके साथ ज़रूर डिस्कस करें। नाउ लॉज, मॉनिटरी लॉज।
It is said that $388 billion is wasted through social media crimes globally per year. More than 50% of cybercrime related to social media, phishing, credit spoofing can be prevented by cyber awareness. Just by being aware कि हम क्या कर रहे हैं, किसको ईमेल दे रहे हैं, किसको फ्रेंड रिक्वेस्ट दे रहे हैं या किसका फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं, सिंपल सी चीज़ों के बारे में हम अवेयर रहेंगे तो हम इन सबसे प्रोटेक्ट खुद को कर सकते हैं. Youth data says that the age of 12 to 17, 94% of the teens get exposed to internet. 63% youth are addicted to social sites like Facebook, Twitter, etc. And 5% of these youth are addicted to pornography. Now let's learn about cyberbullying. Cyberbullying is an action of harming or harassing anyone via information technology networks in a repeated and deliberate manner. इसको हम ऐसे ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी लड़के को कोई लड़की अच्छी लगी कॉलेज में, हम कोई कॉलेज में पढ़ते हैं या कहीं पर भी जाते हैं, लेकिन वो उसको डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकता, फ्रेंडशिप की अप्रोच नहीं कर सकता. तो पहले में हम देखते थे कि वो उसकी फ्रेंड के थ्रू उसके पास जाता था, अप्रोच करता था, फ्रेंडशिप कराओ, राइट? ये सब हमने मूवीज में देखा है. लेकिन आज के ज़माने में क्या हो रहा है, किसी को टाइम वेस्ट नहीं करना है, एवरीवन इज बिजी. वो उसके सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स पे जाके ढूंढेगा, फेसबुक पे ढूंढेगा, ट्विटर पे ढूंढेगा, राइट? फिर उसको एनोनिमस हो सकता है, वो अगर गलती बंदा है तो वो खुद की ओरिजिनल आईडी से उसको देगा, नहीं तो वो फेक आईडी बनाएगा, उसको अप्रोच करेगा. कई बार लड़के लड़कियों की आईडी बना के अप्रोच कर लेते हैं, ठीक है? उन सब से आप बहुत हाँ बोल रहे हैं, आप में से बहुतों के साथ हुआ है ऐसा? ओके. तो उनमें से अप्रोच करते हैं, लड़का बन के भी लड़की बन के भी, धीरे धीरे फ्रेंडशिप करते हैं और अच्छी फ्रेंडशिप करते हैं. जब ज़्यादा अच्छी फ्रेंडशिप होती है, दिस इज वेरी, वी ऑल नो गर्ल्स आर इमोशनल, तो हम इमोशनल होते हैं, हम फ्रेंडशिप करते हैं, हम अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी उनके साथ शेयर करते हैं. जैसे जैसे उनको मालूम पड़ता है फिर वो धीरे धीरे हमको हरास करता है. सपोज वो हमें फ्रेंडशिप के लिए या गर्लफ्रेंड बनने के लिए मजबूर करे एंड वी डिनाई, हमने मना किया, तो वो हमारी उस पर्सनल इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके हमको हरास करेगा, हमारे पीछे पड़ जाएगा. दिस इज साइबर बुलिंग. लेकिन ऐसी कंडीशन में हम डर जाते हैं कि हम किससे ये बातें शेयर करें और हम नहीं करते और हम उसको अपना फ़ायदा उठाने देते हैं. तो प्लीज़ गर्ल्स डोंट डू दैट. You are very bold girls, I know. So you have to take up, you have to face it. ऐसा अगर हो जाता है by mistake, not a big deal. हम सबसे गलतियाँ होती है, हमने कोई फ्रेंड कर ली, किसी से फ्रेंडशिप कर ली, not a big deal. पेरेंट्स भी शेयर करो. आजकल के पेरेंट्स भी बिल्कुल ब्रॉड माइंडेड है, राइट? तो अब कोई होगा साइबर बुली? No, you all will discuss it with your friends and parents. Okay, now let's look at some facts about cyberbullying. 53% of youth are bullied online. Bullying patterns. 29% are made fun or teased. Now, one more thing in cyberbullying is, हम कई बार ऐसा करते हैं, ज़रूरी नहीं है हम किसी को पीछे पड़ रहे हैं या हरास हो रहे हैं. एक और चीज़ इसकी ऐसे होती है, फॉर एग्जाम्पल हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उसके अंदर थोड़ी फ्रेंड्स को ऐड किया. सपोज उनमें से 15 लोगों में से एक फ्रेंड हमारा मोटा, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, जस्ट आउट ऑफ फन हम उसको मोटू, चपी चीक्स ऐसा नाम देते हैं, ठीक है? और फिर हम करते हैं तो बाकी के 14 लोग भी स्टार्ट करते हैं, राइट? बट हमें नहीं पता है जिसके लिए हम कर रहे हैं वो उसको पॉजिटिव मैनर में ले रहा है या नेगेटिव मैनर में. हो सकता है उसको इससे बुरा लग रहा है, हम विदाउट रियलाइजेशन करते जाते हैं, एक के साथ पूरे 14 लोग भी करते हैं, वो बंदा एक अकेला रह जाता है. उस कंडीशन में हमें देखना चाहिए व्हाट ही इज फीलिंग लाइक. इज ही फीलिंग गुड, इज ही ओके अबाउट दैट, और इज ही फीलिंग बैड. सम एग्जाम्पल्स में हमने देखा है वो बंदे को अच्छा नहीं लगता है, वो एंजाइटी में आ जाता है, वो डिप्रेशन में आ जाता है, वो आपका ग्रुप लीव करके चले जाता है. दिस इज अलार्मिंग कंडीशन. हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं, उसको अच्छा लग रहा है या नहीं. सो ऑल ऑफ यू विल टेक केयर. Also, we all are grown-ups. Now think before you type, think before you post. It is very important. Now we all know, we have learned about cyberbullying. Now you tell me something. आप में से कितने लोगों को ऐसा फील हुआ है आपके साथ cyberbullying हुई है कभी? Anyone? I've just told you have to be frank. I'm not asking any personal questions. Raise your hands if you have gone through this. किसी ने WhatsApp पे ऐसा मजाक या ऐसा कभी किसी के साथ किया है? ओके, अब आप मुझे ये बताइए, हमें साइबर बुली नहीं हो हम या किसी और के साथ नहीं करें, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? एनीवन? हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? हमने सब पढ़ा है. एनीवन? ओके, लेट्स मूव ऑन. आप में से कितने लोग कभी भी साइबर अवेयरनेस कैंप में गए? एनी टाइम यू हैव बीन देयर, यू हैव लर्न.
And do you follow these things? Very good. So it should be not just her, but every one of you जो भी cyber use कर रहा है, उसे cyber awareness कैंप में जाना चाहिए. Now, to be very precautious about using internet and all, this is very important. Don't click the unknown photographs as it could contain virus. हमारे साथ फेसबुक में कभी-कभी होता है, हम कोई फोटोग्राफ क्लिक करते हैं, वो फोटोग्राफ ऑटोमेटिकली जस्ट ऑन क्लिकिंग हमारे पेज पे पोस्ट हो जाती है और हमारे जितने भी फ्रेंड्स उसको क्लिक करते हैं विदाउट नोइंग उन सबके पेज पे पोस्ट होती है. तो दिस इज वायरस. प्लीज डोंट क्लिक एनी फोटोग्राफ as it can contain virus. Before clicking, you can check by putting upper inverted commas in the URL. Also, हमारी emails के अंदर Google और Yahoo warning देता है नीचे. तो कोई भी email के अंदर ऐसा डेटा है जिसके अंदर आपको warning मिल रही है, please check and then click. Saurabh will explain more on this. तो सबसे पहले एक चीज बताओ, किस ने मेल आईडी पढ़ने से पहले नीचे वार्निंग चेक की है कि ये फेक है या नहीं? कौन करता है? एनीवन? चलो सही है, तो करते हैं. देखो होता क्या है, आपको दो चीजें बताना हूं. जैसे फर्स्ट मान लीजिए आपके पास एक साइट का लिंक आता है, अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने से पहले फर्स्ट चीज चेक कर लीजिए कि वो साइट फिशिंग के लिए तो नहीं भेजी गई है या फेक तो नहीं है. बहुत सिंपल सी चीज से आप चेक कर सकते हैं. जस्ट लाइक मेरे पास एक लिंक आता है जिसमें होता है google.com. जैसे मेरे पास लिंक आया तो मैंने जो ही क्लिक किया ये वाला लिंक सपोज खुल गया. तो इसको चेक करने का आपके पास बेसिक मेथड ये रहेगा कि आप इस पे ऊपर एक इन्वर्टेड कॉमा पुट अप कर दीजिए. सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, ये वाला आपको दिख रहा है, सिंगल. इस पे जब आप लिखेंगे और इसके बाद एंटर करेंगे, अगर तब भी यही साइट खुल रही है तो समझ लीजिए फेक साइट है, और अगर नहीं खुल रही तो मतलब ओरिजिनल. हम ये ओरिजिनल है इस कारण इस पर कुछ भी लिंक नहीं आया है, लेकिन फेक साइट पे लिंक आते हैं. ठीक है. और फेक मेल किसको भेजना आता है? फेक मेल कौन कौन सीखना चाहता है? जस्ट एजुकेशन पर्पज में आपको बता रहा हूँ. सिंपल सा है, आपको कुछ भी नहीं करना है. गूगल पे आना है, आता है तो बहुत सिंपल सा है. जीमेल या याहू पे नीचे वार्निंग होती है, मे बी इट इज अ फेक मेल. आप उस वार्निंग को नजरअंदाज मत करना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है. ठीक है. इसलिए उस मेल आईडी को थोड़ा ध्यान से देखना. अगर वो फेक होगी तो उसमें कोई लिंक जरूर होगा. जस्ट लाइक एक फोटो होगी, ठीक है, या फिर एक लिंक होगा. लिंक पे और फोटो पे क्लिक क्यों नहीं करना चाहिए, कोई बता सकता मुझे? एग्जैक्टली, ये फिशिंग हो सकती है. आप जो ही उस पर क्लिक करोगे एक पेज खुलेगा. जस्ट लाइक आपका बैंक अकाउंट भी खुल सकता है, फेसबुक खुल सकता है, ट्विटर खुल सकता है. जैसे ही वो खुलेगा आपको क्या करना होगा, आप सोचोगे कि ये तो मेरा अकाउंट है, मैं तो सीधे पासवर्ड और यूजर नेम डाल देता हूँ और खोल लेता हूँ. आप ये गलती करोगे, वो डालोगे और वो सारा का सारा एड्रेस आपके जो सर्वर है उसके पास चला जाएगा. तो ऐसा ना करें. पहले चेक कर लीजिए कि वो मेल के नीचे लिखा हुआ तो नहीं है कि ये वायरस है या नहीं है, या फेक है या नहीं है. तो वो जरूर चेक कर लीजिए. How to be precautious with your online data. Never upload your private data on cloud and never save your private data on email. This sort of what we say also.
क्लाउड क्या होता है, कौन बता सकता है? क्लाउड नाम नहीं सुना क्या? बताओ कौन बता सकता है क्लाउड? एनीवन? चलो, क्लाउड क्या होता है? क्लाउड मींस एक ऐसा यूएसबी स्टोरेज जो आपको ऑनलाइन प्रोवाइड होता है, जस्ट लाइक ड्रॉपबॉक्स। ड्रॉपबॉक्स में आपको 2 GB तक का स्पेस ऑनलाइन प्रोवाइड होता है। ये एक ऐसे जैसे एक पेन ड्राइव आप ले जाना भूल गए तो आप क्लाउड से कोई भी डाटा ले सकते हो, उसे क्लाउड कहते हैं। ये 3 तरह के होते हैं, ठीक है। मेनली यहाँ पे दो ही बताए गए हैं। पहला होता है शेयरवेयर और दूसरा होता है प्राइवेट। शेयरवेयर वो वाला होता है जिसमें से हमने डाटा डाल दिया तो वो कोई भी डाउनलोड कर सकता है, ठीक है। और दूसरा होता है प्राइवेट। प्राइवेट मीन्स इसको केवल आप ही डाउनलोड कर सकते हो। तो इंपॉर्टेंट ये याद रखिएगा, जब आप ड्रॉपबॉक्स पे अकाउंट बनाए तो चेक कर लीजिए वो प्राइवेट है या शेयरवेयर है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक्सपी को यूज मत कीजिए। 90% ऑफ यू यूज करते हैं एक्सपी को, उन्हें ये नहीं पता होता। जबकि मैं खुद देख रहा हूँ एसबीआई बैंक हमारे गवर्नमेंट बैंक है, फिर भी उसमें ये यूज किया जाता है एक्सपी। एक्सपी को यूज ना करें। क्यों नहीं करना है? क्योंकि इसमें सिक्योरिटी नहीं है, सिक्योरिटी खत्म हो चुकी है। अगर हमारे पास विंडो 8 और 7 है तो बेस्ट है, क्योंकि ये सिक्योर है। इसलिए सिक्योर है क्योंकि हमें माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी देता है। सपोज करो हमारे पास एंटीवायरस नहीं है तो हमारे पास सिक्योरिटी कैसे होगी? तो सिंपल सा है, विंडो 7 और विंडो 8 में एक सॉफ्टवेयर दिया जाता है विंडो डिफेंडर, ये वाला। ये विंडो डिफेंडर है, ये प्रीबिल्ट सॉफ्टवेयर है जो इसके थ्रू ही दिया जाता है। इससे आपको सिक्योरिटी मिलेगी इसलिए। और एक्सपी में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो एक्सपी डालने से पहले ध्यान रखिएगा, उससे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जा सकती है। Online data के बाद we come to offline data, how to protect them. It is very mandatory that don't share your system with anyone. हमें अपना PC, लैपटॉप कभी किसी से शेयर नहीं करना चाहिए. You never know who's making use of it, right? Don't share your very personal information on computers. जो हमारी बहुत ज़्यादा personal और sensitive information है, उसे हम अपने PC पे भी ना डाल के रखें. Don't let anyone put a USB in your computer system. Never purchase used computer, laptop or mobile. हम लोग ज़्यादातर हमारा टेंडेंसी रहता है सेकेंड हैंड ले लेंगे, थोड़ा सा कम में मिल जाएगा. प्लीज डोंट डू इट. ऑलवेज बाय फ्रॉम अ रिलायबल डीलर. ओके. एंड नेटवर्क इज नेवर यूज सिक्योर्ड साइट्स इन फ्री वाईफाई जोन. नॉर्मली हम फ्री वाईफाई जोन में यूज करने के लिए हम यूज करते हैं, वो हमें नहीं करना चाहिए. ऑलवेज कीप योर ब्लूटूथ ऑफ व्हेन नॉट इन यूज. Okay, now technical terms he'll explain. सबसे पहली चीज मैम ने एक चीज बताई कि आप पेन ड्राइव को या यूएसबी को अपने पीसी में नहीं लगाएं या फिर दूसरे के पीसी में नहीं लगाएं. क्यों? क्योंकि आपका जो डेटा है वो चोरी हो सकता है. मैं एग्जांपल आपको करके दिखा सकता हूँ. किसी के पास पेन ड्राइव है यहाँ? एनीवन? सर के पास है? ये सर का पेन ड्राइव है, मुझे नहीं पता इसमें क्या है. मैं ना इसे कॉपी करूंगा. मैंने इसमें लगाया, कुछ सेकंड रखा, कुछ भी नहीं कर रहा हूं मैं. सर का पेन ड्राइव जहां है वहां है और मैंने इसे निकाल दिया. ओके. मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया. मैंने कुछ सेकंड्स के लिए लगाया और हटा दिया. इसने क्या किया? इस लैपटॉप में वायरस था जिसने इसका डाटा ऑटोमेटिकली कॉपी कर लिया है. ये रहा यूएसबी. सर के पेन ड्राइव में कुछ भी नहीं था. किसी और के पास है पेन ड्राइव? इसमें कुछ था, मुझे नहीं पता क्या था, मैंने कॉपी भी नहीं किया. ठीक है. अब मैंने क्या किया? इस पेन ड्राइव को निकाल दिया. ठीक है. अब देखिए क्या हुआ.
ये 3 फाइलें थी, जबकि मैंने कॉपी नहीं किया आपके सामने। सिंपल सा एक एग्जांपल है, मैंने इसमें से कॉपी नहीं किया लेकिन ऑटोमेटिकली डाटा कॉपी हो गया। इसलिए पेन ड्राइव में आप अपनी सिक्योर चीजें ना रखें क्योंकि ये बहुत रिस्की है। इसमें वायरस से डिलीट कर लेंगे। एक दूसरा एग्जांपल बताता हूँ कि आप दूसरे का पेन ड्राइव अपने कंप्यूटर में क्यों ना लगाएं। मेरे पेन ड्राइव में वायरस है इस वक्त, मैं अपने पेन ड्राइव से दिखाता हूँ। ये मेरा पेन ड्राइव है, इसमें एक वायरस है। ये लैपटॉप से जितनी फोटोज होती हैं उसे कॉपी कर लेता है। कैसे करता है? क्योंकि ये ऑटोमेटिक करता है, मैं इसे मैन्युअली करके दिखा रहा हूँ इसलिए आपको ये शो होगा, वैसे शो होता नहीं है पर आपको शो करने के लिए दिखा रहा हूँ। सपोज ये पेन ड्राइव लगता है, इसमें जितनी फोटोज होंगी ऑटोमेटिकली कॉपी होने लग जाएंगी, मुझे पता नहीं चलेगा। लेकिन मैं इसे मैन्युअली करके दिखा रहा हूं आपको। ये फाइल नाम का वायरस है इसमें। ये क्या करेगा, ये देखो अभी थोड़ी देर में ये सारी फोटोज कॉपी होने चालू होगी। अभी कुछ टाइम लगेगा, थोड़ा स्टार्ट होने में टाइम लगता है, फिर धड़ाधड़ कॉपी होना चालू कर देते हैं। ये ऑटोमेटिक होता है, ये तो मैं मैन्युअली करके दिखा रहा हूँ, वरना ये सारा काम ऑटोमेटिक होता है। शो भी नहीं होगा सामने वाले को और सारा डाटा चोरी हो जाएगा उसका। ठीक है, ये कॉपी होके कहाँ आया पता नहीं, पेन ड्राइव में आया है। पेन ड्राइव में हॉल में ये पिक्चर्स सर की थी या जिसकी भी थी कॉपी हो गई ऑटोमेटिक। तो इसलिए दूसरे का पेन ड्राइव आप अपने कंप्यूटर में लगाने से पहले एटलीस्ट उसे स्कैन कर लें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने स्कैन नहीं किया तो शायद आपके वायरस आ सकता है। ठीक है, दूसरा ये कि जब आप अपना पीसी लेते हैं तो उसको फॉर्मेट करके लेना चाहिए। सेकेंड हैंड लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लीजिए, लेकिन जब आप ले रहे हैं तो उसे पूरा फॉर्मेट कीजिए। पूरा कंप्लीट फॉर्मेट करने के बाद ही उसमें सारे वायरस या जो कुछ भी होगा सब डिलीट हो जाएगा, देन वो चालू रहेगा, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताई गई, ब्लूटूथ को हमेशा ऑफ क्यों करना चाहिए। मतलब इससे क्या प्रॉब्लम है? ब्लूटूथ तो मेरा मोबाइल का जब चाहे जब ऑन रख सकता हूँ, कोई बता सकता है? किस तरह का वायरस? एनीवन? कोई भी एक मोबाइल में क्या वायरस होगा? एप्लीकेशन ही तो होंगी ज्यादा से ज्यादा। अरे चलो मैं बताता हूँ। मोबाइल में कुछ ऐप्स होते हैं जस्ट लाइक SBI फ्रीडम, मोबाइल मनी। ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जो आपके अकाउंट से डायरेक्ट लिंक होती है। जैसे आपके अकाउंट में 10,000 रुपए हैं तो सारे के सारे मोबाइल में रहेंगे, मतलब एक ओपन क्रेडिट कार्ड की तरह। वो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड व्हाटएवर, आप उसे स्वैप करने की जरूरत नहीं है, क्लिक करना है, पेमेंट ट्रांसफर हो जाएगा। तो ब्लूटूथ से क्या प्रॉब्लम है? ब्लूटूथ से प्रॉब्लम ये है, सपोज मेरा ब्लूटूथ ऑन है तो कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो मैं आपको बता नहीं सकता। वो सॉफ्टवेयर से जस्ट आपका ब्लूटूथ ऑन है, मैं आपसे लिंक करूंगा, आपके मोबाइल की सारी फोटोज, सारे वीडियोस, सारे हाइपरलिंक्स, जीमेल्स, आपके बैंक अकाउंट्स, यहाँ तक कि आपके मोबाइल का बैलेंस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपके मोबाइल का बैलेंस तक मेरे पास ट्रांसफर हो सकता है। कुछ भी नहीं करना मुझे, बस ब्लूटूथ ऑन में सर्च करना है, मुझे ब्लूटूथ मिल गया, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, आपके मोबाइल का बैलेंस ले लूंगा और कुछ नहीं। भाई सिंपल सा ब्लूटूथ, मैंने इतना बड़ा सॉफ्टवेयर लिया है, स्कैन कर रहा हूँ, बैंक बैलेंस चलो मान लो आपका जीरो है, अकाउंट ही नहीं है, ठीक है, फोटोज भी आपके पास नहीं थी, वीडियोस भी आपके पास नहीं थे, लेकिन आपके पास एक इंपॉर्टेंट चीज जरूर होगी, वो है बैलेंस। वो मैं ले लूंगा, फिर आप ठंडन गोपाल हो जाओगे, ठीक है। और दूसरा ये नेवर यूज फ्री वाईफाई। So there is a query. So अगर हमने ब्लूटूथ ऑन कर रखा है एंड विजिबिलिटी इज ऑफ, हाँ, तब भी ये चीज तब पॉसिबल भी है? हो सकता है। So pairing कैसे होगी? I mean, I am not accepting anything. I am not पेयरिंग के declining लिए anything. एक ब्रूस्ट फोर्स नाम का फोर्स होता है, वो लगता है। उसके बाद आपको पेयरिंग में विजिबिलिटी ऑन हो ऑफ हो किसी की कोई जरूरत नहीं है, आपका मोबाइल ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। That means first you will switch on the visibility, then you will accept the pairing. हाँ, उसके बाद आप, और ब्लूटूथ ऑफ करना बहुत जरूरी है, ठीक है। और दूसरा ये फ्री वाईफाई में आप नेट ना चलाएं। अगर नेट चला ही रहे हैं तो सोशल मीडिया जिन में पासवर्ड लगता है, लाइक सोशल मीडिया, पेमेंट वाले, इनमें जो भी है उनमें आप ना चलाएं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है, ठीक है। और अगर आप चला ही रहे हैं तो यूज सिक्योर पासवर्ड, ठीक है।
सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है पेमेंट्स की। हमने कहीं से कुछ शॉपिंग किया या कुछ भी किया, हम पेमेंट्स किस मोड में करते हैं? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलवेज यूज इनकॉग्निटो विंडो। व्हाट इज इट? ही विल एक्सप्लेन यू। इनकॉग्निटो विंडो, ये खोलने का तरीका सिंपल सा, आपने ये खोल रखा है, देख लीजिएगा। तो यहाँ पे ये एक टैब होता है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन होता है, इस पर क्लिक करना है तो आपके पास एक अजीब सी यहाँ पे एक हेड बना हुआ आ जाएगा और यहाँ पे एक विंडो है। इस विंडो पे आप जो भी चीज़ करते हैं ये ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट डिलीट हो जाती है, ठीक है। और इसकी खास बात ये होती है कि ये टाइम आउट फंक्शन रखती है। सपोज करो पेमेंट में आप 20 इसमें टाइम आउट 2 मिनट्स का है, अगर 2 मिनट्स के अंदर आपका पेमेंट नहीं होता है तो ऑटोमेटिकली विंडो उस पेमेंट को डिस्कार्ड कर देगी, मतलब कैंसिल हो जाएगा वो पेमेंट, फिर आपको ये वापस से चालू करना पड़ेगा। हालांकि थोड़ी मुसीबत का काम है कि बार बार आप कर रहे हो, पेमेंट कैंसिल हो रहा है तो ये माथा गोड़ी लगती है, तो लोग नॉर्मल विंडो पे ही काम चला लेते हैं, लेकिन नहीं चलाना चाहिए क्योंकि इससे आपका जो डाटा है, क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स या डेबिट कार्ड की डिटेल्स, पिन नंबर, कुछ भी जा सकता है और हर साल जाता है। Now, what all points should we keep in mind when we use social media, especially Facebook? इसके अंदर हमें ध्यान रखना चाहिए, we should never upload our photographs on Facebook. स्पेशली गर्ल्स हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए अगर हम फोटोग्राफ अपलोड करें तो उसे थोड़ा ब्लर्ड इमेज अपलोड करें ताकि वो उसका यूज़ कोई गलत वे में कोई और आगे ना कर सके। और अगर हम कर रहे हैं तो उसे लॉक रखना चाहिए टू फ्रेंड्स। इट इज़ नॉट सेफ स्पेशली फॉर द गर्ल्स। ऑल्सो नेवर अपडेट योर मोबाइल नंबर, रेजिडेंशियल एड्रेस, ईमेल आईडी या ऐसे पर्सनल डिटेल्स। इससे क्या होता है, जो हमारे हैकर्स रहते हैं वो इन्हीं सब चीज़ों को यूज़ करके आपके पासवर्ड को हैक करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हमारी आदत रहती है कि जो चीज़ इजी टू रिमेंबर होती है हम वही यूज़ कर लेते हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ, नाम, अपने बॉयफ्रेंड्स के नाम या मम्मी पापा का नाम, ऐसे कुछ इनका कॉम्बिनेशन करके यूज़ करते हैं। हैकर्स आर वेरी स्मार्ट, वो ये सब यूज़ करके आपका करते हैं। ऑल्सो हमें कभी भी अपना स्टेटस फेसबुक पे नहीं डालना चाहिए। मोस्ट ऑफ द पीपल दे डू, आई एम गोइंग टू शिमला फॉर 3 days, हैविंग अ ट्रिप इन यूरोप फॉर 7 days। ये हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। व्हाट हैपेंस इज, आजकल के जो रॉबर्स एंड थीव्स है दे आर ऑल्सो वेरी नेट सैवी, बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं। वो आपकी इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करेंगे कि आप कब तक घर में नहीं है और आपको पता भी नहीं पड़ेगा आप यूरोप में वैकेशन मना के आए जब तक वो अपना वैकेशन मना गए घर पे, ठीक है। तो प्लीज़ डोंट डू इट। ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू यूज लॉन्ग पासवर्ड। उसका क्या इंपॉर्टेंस है, he'll just tell you। उसके अलावा यू शुड नॉट एक्सेप्ट फ्रेंड रिक्वेस्ट फ्रॉम स्ट्रेंजर्स। वो हम अभी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आई एम जस्ट रिमाइंडिंग, प्लीज डोंट एक्सेप्ट द फ्रेंड रिक्वेस्ट फ्रॉम स्ट्रेंजर्स। ऑल्सो सेट योर प्राइवेसी सेटिंग्स टू अलाउ ओनली योर फ्रेंड्स टू व्यू योर फोटोग्राफ्स एंड कंटेंट। आपको ये शो हो रहा है? कौन सा पासवर्ड आप रखना चाहेंगे? ये आपने गलती कर दी। यही जो चीज मैंने अभी भी जस्ट बताई है कि पासवर्ड हमेशा लंबा होना चाहिए, तो इसमें सबसे सिक्योर जो पासवर्ड है वो ये है, दिस इज माय यूजर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप सोचते हैं कि जो अजीब से लेटर होते हैं इस चक्कर में ये पासवर्ड लगाना सही है, ये गलत है। ये लेटर्स बहुत इजीली क्रैक होते हैं, जितना हो सके उतना लॉन्ग डिजिट का पासवर्ड रखें। 10 डिजिट मोबाइल नंबर रख लेते हैं, नहीं मत रखना, कोई फायदा नहीं है, मोबाइल नंबर सबसे पहले क्रैक होते हैं, ठीक है। इसलिए वर्ड जितने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रखने रखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लॉन्ग 10 डिजिट से तो एटलीस्ट लॉन्ग रखना, ठीक है। Actually, sir, जहाँ तक हम लोगों ने सुना है, a password should contain alphabets
या Is that secure password? या बट जो इसके लेटर्स हैं वो 10 डिजिट से ज़्यादा होने चाहिए। अगर कम होंगे, सपोज 5 डिजिट के मैंने पासवर्ड लिख दिए जिसमें अल्फ़ाबेट्स भी हैं, अपर लेटर भी है, लोअर लेटर भी है, स्पेशल कैरेक्टर भी है, नंबर वैल्यू भी है, बट ये सिक्योर नहीं है क्योंकि ये बहुत कम लेटर्स हैं और बहुत इजीली क्रैक हो जाएंगे। Now we move on to smartphones. How many of you use smartphones? Almost everyone. Okay. So we all, as you all use smartphones, so you all know that smartphones are as powerful and connected as any PC or laptop, right? It's just like a mini computer. But you know that each day 200,000 devices are lost each day, and they are either stolen or damaged. स्मार्टफोन यूजुअली सपोर्ट अ वाइड रेंज ऑफ फंक्शनैलिटी। हम जो कुछ भी अपने पीसी या लैपटॉप पे यूज़ करें वो सब स्मार्टफोन पे कर सकते हैं। बीट गेम्स, ईमेल, जो भी इंटरनेट पे हम यूज़ कर रहे हैं, सॉरी, यू ऑल कैन यूज देयर। आर यू ऑल अवेयर ऑफ दिस थिंग? ठीक है। बट व्हाट प्रिकॉशंस डू यू यूज बाय यूजिंग स्मार्टफोन्स? टेल मी एनीवन। आप भी प्रिकॉशंस यूज करते हैं? कौन कौन करता है प्रिकॉशन? अपने अपने प्रिकॉशन बताइए। यस, ओके, वील डिस्कस अबाउट दिस। स्मार्टफोन यूज करने की जो प्रिकॉशंस हमें ध्यान में रखने चाहिए वो ये है, वी शुड यूज स्क्रीन लॉक विद अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। कोई हम अगर पैटर्न बनाते हैं तो पैटर्न इतना इजी नहीं बनाना चाहिए कि सामने वाले को बहुत जल्दी से क्रैक हो जाए, या हमें मल्टीपल लोगों के सामने अपना पासवर्ड का जो पैटर्न है वो यूज नहीं करना चाहिए। We can use remote lock and wipe capabilities. Also, security software हमें जो अपने स्मार्टफोन्स का है वो हमेशा अपडेट रखना चाहिए। Learn to disable the geotagging feature on your mobile. Do anyone do that? Geotagging के बारे में पता है किसी को? Okay, Saurabh will explain. जो सिक्योरिटीज हैं इनमें हमें कुछ सिक्योरिटीज ध्यान रखनी चाहिए। जैसे फर्स्ट लाइक हमें ये याद रखना चाहिए कि जो फोन है इसकी लोकेशन ऑन रखें। ये इसके ड्रॉबैक भी हैं और फायदे भी हैं। ड्रॉबैक ये है कि सपोज आपने जो लोकेशन है ऑन रखी हुई है तो फेसबुक पे जब आप उसे ऑन करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी लोकेशन फेसबुक पे चली जाएगी। इसलिए उस लोकेशन को फेसबुक, जीमेल इन पे ना डालें, ओनली गूगल पे रखें। जैसे ही लोकेशन ऑन होगी फायदा है। फायदा ये है कि अगर आपका फोन चोरी हो जाता है तो इसके अंदर आपकी जो लोकेशन है वही आपके फ़ोन को ट्रेस कर सकती है जीपीएस ट्रेसिंग के थ्रू, ठीक है। और सेकेंड हैंड फ़ोन वगैरह यूज़ तो करने नहीं। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, जो आपके एप्लीकेशन से जो आप डाउनलोड कर रहे हैं इन्हें आप अपने रिलायबल सोर्स से ही यूज़ करें। अगर आप डायरेक्ट इसे डाउनलोड करोगे तो इससे प्रॉब्लम ये आएगी कि आपके फ़ोन की जो भी कॉन्टैक्ट वगैरह ये सब डिटेल्स होती हैं सब चली जाएंगी तो इन किसी सर्वर के पास। तो इस चीज़ को ध्यान रखें, इसलिए डायरेक्ट डाउनलोड ना करें। आपका जो सर्वर है जस्ट लाइक नोकिया है तो नोकिया अपना खुद का सर्वर देता है, वहाँ से डाउनलोड करें, ठीक है। अब हम सब स्मार्टफोन यूज तो करते हैं, बट व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ रिस्पॉन्सिबल स्मार्टफोन यूजर, हम उसके बारे में बात करेंगे। ऑलवेज यू शुड गेट परमिशन ऑफ अदर्स बिफोर क्लिकिंग देयर फोटोग्राफ्स या उनका वीडियो करते वक्त टाइम। सेम चीज़ आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए, समवन एल्स इज टेकिंग योर फोटोग्राफ और इफ समवन एल्स इज मेकिंग योर वीडियो, यू शुड बी विजिलेंट। अगर आपको नहीं पसंद है या आप नहीं जानते कौन कर रहा है तो स्ट्रेटली गो एंड से नो। Give your mobile number only to those whom you trust. This is, I'm sure you must all know this. Get into a habit of putting your smartphone in your pockets or purses when not in use. इससे क्या होगा? The chances of losing your smartphone on a coffee shop or restaurant, that will be minimized, right? Now, we all know what is the importance of a purse or wallet. उसका अगर खो जाता है तो हमें बहुत भी कम in a shock कि हमारा wallet या पर्स खो गया है। Why? क्योंकि उसके अंदर हमारी इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन रहती है, लेकिन हम लोग इस पर ध्यान ही नहीं देते कि अगर हमारा स्मार्टफोन खो गया तो उससे क्या क्या हो सकता है। ये हम एक छोटे से एक्सरसाइज से करेंगे। एनीवन हु वांट्स टू आंसर अ सिंपल क्वेश्चन, अगर हमारा वॉलेट या पर्स खो जाता है तो उसमें से क्या क्या चीज़ें सामने वाले के पास जा सकती है? आप में से कोई आंसर करेगा? वन बाय वन। License, IDs,
your driving license, IDs, your ATM cards, debit credit cards if you use them, and most important, money. Okay, That can go. If these things are stolen, then we can get for SIM card. We can use a SIM card for that contact number जो भी है given है उसमें, तो उससे अपन किसी को कॉल्स कर सकते हैं और वो यस वेरी गुड। उससे बेसिकली हम उनका आइडेंटिटी यूज करके कोई और पर्सन बन के हम मिस यूज कर सकते हैं, राइट? ठीक है, ये सब चीजें हुई, हम कितने अवेयर है। अगर हमारा वॉलेट हो गया तो ये सब हो गया, सबको पता है। बट अगर हमारा स्मार्टफोन होता है तो उसमें से सामने वाले इंसान के पास हमारी क्या क्या इंफॉर्मेशन जाएगी, इसका डिस्कस को पता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस प्लीज। मैम, इफ वी लॉस्ट आवर स्मार्टफोन्स, सबसे पहले तो हमारी ऑब्वियसली फ़ोन में सिम होगी तो सिम जाएगी। सेकेंड, अगर जीपीएस लोकेशन ऑन है तो आप कहाँ कहाँ ट्रैवल किया है सब कुछ वो इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। सेकेंड, आपके उस सिम से रिलेटेड आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स सेव्ड होते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स चले जाएंगे। फोर्थ, वी हैव लाइक हमारे फ़ोन्स पे हमारे OTPs आते हैं और सारे जो ATMs के जो ट्रांजेक्शन हम करते हैं उनकी डिटेल्स वगैरह भी हमारे फ़ोन पे आती हैं। तो इन केस हमने हमारे लॉगिन छोड़ रखा है कोई भी पेटीएम या पेपाल जैसी वेबसाइट्स हैं तो उसका OTP भी हमारे ही फ़ोन पे आएगा। और जनरली होता है कि ईमेल्स कॉन्फ़िगर्ड होते हैं फ़ोन के अंदर, तो उस पर भी पूरा एक्सेस मिल जाएगा। तो सारा ऑलमोस्ट ऑल ऑथेंटिकेशन इज ऑन स्टेक। यस वेरी गुड। सो द थिंग इज, हमने अभी शॉर्ट में ब्रीफली हमने ये डिस्कस किया कि अगर वॉलेट होता है तो हमारे इतने सामान होते हैं, लेकिन अगर हमारा स्मार्टफोन होता है तो इतने सामान होते हैं। लेकिन हम लोग इसके बारे में इतने विजिलेंट नहीं है। जैसे ही वॉलेट होता है वी जस्ट रन टू द पुलिस, हमारा ये हो गया, इतने उसमें मनी थे। लेकिन स्मार्टफोन होता है हम उसको कैजुअली लेते हैं। लेकिन वी सी द डिफरेंस, अगर हमारा स्मार्टफोन होता है तो हमारी कितनी पिक्चर्स दूसरों के पास जा सकती है, वॉलेट में कितनी पिक्चर्स निकलेगी, 1, 2, मैक्सिमम 5। लेकिन स्मार्टफोन से मोर देन 100 पिक्चर्स कैन बी शेयर, राइट? उसके अलावा ईमेल एप्लीकेशन, एज शी सेड, वीडियो, सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन, हमारे सारा फेसबुक, ट्विटर, एवरीथिंग इज जस्ट नाउ ओपन। वो उससे कुछ भी मिसयूज कर सकता है विच वी कैन नेवर इवन इमेजिन ऑफ, राइट? उसके अलावा बैंकिंग सारे स्टेटमेंट्स वगैरह उनके पास जा सकते हैं, वो यूज कर सकते हैं। वी कैन सेंसिटिव कम्युनिकेशन रिकॉर्ड्स होते हैं। आजकल हम कुछ इंपॉर्टेंट हमारी बातें होती है, हमारी सर्च से होंगी या कुछ भी इंपॉर्टेंट की चीज़ें होती है, लीगल चीज़ें होती है, वो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन में हमारा स्मार्टफोन चोरी हो जाता है, एवरीथिंग इज गॉन। So the important is, the more you use smartphones, the more vigilant you should become. Okay? Now we'll talk about email from mobile. ऐसा everyone does that कि हम अपने मोबाइल से emails यूज करते हैं, लेकिन it is advised, it is suggested कि जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो आप अपने मोबाइल से email ना यूज करें। और अगर आपको करना पड़ रहा है तो आप इन सब चीज़ों को यूज करें, लाइक डू नॉट इसके अंदर if you use email encryption with some of your contacts, consider installing it on your smartphones too. This Saurabh will explain us. दो चीज़ें इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखनी है। जस्ट लाइक अगर आप ईमेल्स को यूज़ करते हैं तो उन्हें लॉग आउट जरूर करें, क्योंकि ये आपका ओपन बैंक अकाउंट है। आप अभी मैम ने बताया था इन्होंने कि OTP मतलब जो आता है उसकी ज़रूरत ही नहीं है। अभी एक ऐप काफ़ी चल रही है, टीवी पे ऐड भी आ रहा है, पॉकेट ICICI, सबने देखी होगी आई थिंक। ये क्या होता है कि आपका जो बैंक अकाउंट है इससे डायरेक्ट लिंक रहती है। अगर किसी ने आपका फ़ोन चोरी कर लिया है तो आपके बैंक अकाउंट गया, फिर उसमें से जितनी भी मनी होगी, जितने भी पैसे होंगे वो डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए मोबाइल फ़ोन में आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, जैसे ईमेल को उस पर एक्सेस ना करें, उसे ओपन ना करें। अगर रिप्लाई करना हो रहा है तो साइबर कैफे पे जाके 10 रुपये लगा के उसमें मेल कर लीजिए, लेकिन ऐसे डायरेक्ट मत कीजिए, ये बहुत रिस्की है। Okay, we'll talk about credit cards. Credit cards we all use in our day-to-day life, right? So let's have a look at what should we do and what should we not do. Paying for transactions through credit cards or paying online, what points should be kept in mind? Okay, using a card at merchant outlets, one should make sure that it is being swiped in your presence. अगर आपके पीछे से वो यूज कर रहा है तो the card can be cloned. We don't know about this, लेकिन आपका वो जो कार्ड है वो क्लोन हो जाएगा. Second thing is, important information like name of the card holder is printed on the card. Expiry date and card verification value, these all are there on the card.
So it is very mandatory that the card is being swiped in front of you and in the presence of a closed circuit camera. Now Saurabh will explain why. क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड, इन सबका सेम ही है फंडा, लेकिन क्या होता है कि क्रेडिट कार्ड में एक फिक्स अमाउंट होता है कि इतने अमाउंट से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता, जबकि डेबिट कार्ड में प्रॉब्लम ये आती है कि आपका पूरा बैंक अकाउंट उससे जुड़ा हुआ रहता है। जैसे ही डेबिट कार्ड कोई चुराएगा तो आपका पूरा बैंक अकाउंट खाली कर सकता है, जबकि क्रेडिट कार्ड में अगर 25,000 का अमाउंट है तो उससे ज़्यादा तक नहीं ले जा सकता, क्योंकि उसमें पेनल्टी लगती है। ठीक है, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो आपका क्रेडिट कार्ड है या डेबिट कार्ड है वो स्वैप होते वक्त आपके सामने होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है सीसीटीवी कैमरे के सामने आप कीजिए, उसका कार्ड ऊपर से नंबर पिन टाइप करते वक्त छुपा लीजिए। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर ट्रांजैक्शन कर ही रहे हैं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन नेट बैंकिंग यूज कीजिए। सेकंड क्रेडिट कार्ड, थर्ड डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड को थर्ड नंबर पे रखिए, नेट बैंकिंग फर्स्ट पे। और नेट बैंकिंग का ट्रांजैक्शन करते वक्त ये जरूर चेक कर लीजिए कि वहाँ पे HTTPS हो, लास्ट में S होना जरूरी है, S फॉर सिक्योर। अगर S नहीं है तो ट्रांजैक्शन मत कीजिए। And this we all know कि हमें साइबर कैफे से ऐसे ट्रांजैक्शंस नहीं करना चाहिए, that is not safe. Okay, now we'll talk about online shopping. Online shopping हम सब करते हैं, girls are very big fan of online shopping. Who all do that? Almost all of you. Okay, so इतना हमें मालूम है when we go for online shopping हमें सिर्फ प्रोडक्ट की इमेज देख के उसके ऊपर एकदम फैन नहीं हो जाना चाहिए, उस पर फ्लैटर्ड नहीं हो जाना चाहिए। We should check it out that जितना अच्छा वो दिख रहा है उतना अच्छा हमें मिलने के बाद लगेगा। So that is the basic thing. Please check the product online before going to purchase it. Also, print or save a copy of your orders. Share payment information only with known and reputed vendors. हमें किसी से भी नहीं लेना चाहिए। Like for example, इंडिया में हम क्राफ्ट्सविला से ले रहे हैं, इन सब से ले रहे हैं, that is safe. लेकिन अभी कल की नई बनी हुई वेबसाइट है, we have not heard about this, या उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमें डायरेक्टली उससे पेमेंट नहीं करना चाहिए। Check your statements very often. Use strong passwords, we have discussed कर चुके हैं. Also, it is advised that use a credit card instead of a debit card. And never make payments from cyber cafe we have learned. Now we'll talk about ATM frauds. How many of you use ATM frauds? Okay, very nice. So we'll talk about ATM frauds now. It is not fully possible कि हम जैसे लेमैन ये मालूम कर सकें कि उस ATM डिवाइस में स्किमर डिवाइस लगा है या नहीं बाय फ्रॉडस्टर्स। वो हम कैसे मालूम करेंगे कि उस डिवाइस में उस डिवाइस ATM मशीन में स्किमर डिवाइस लगा है या नहीं, हमें कैसे मालूम पड़ेगा? और मालूम पड़ जाने के बाद हमें क्या करना चाहिए? दिस ही विल एक्सप्लेन अस। सिंपल है, आप जब ATM में अपना ATM डालें तो ऊपर एक स्लॉट बना हुआ होता है, उसे इम्पोर्टेंट है। अगर वो स्लॉट बंद है तो उसमें स्कीमर नहीं लगा हुआ है। अगर वो स्लॉट ओपन है इसका मतलब है उसमें कोई स्कीमर लगा के गया हुआ है, जो आप ATM जो ही उसमें डालेंगे वो उसका कॉपी बना के दे देगा, पर आपको नहीं देगा, जो उसके बाद आएगा उसको दे देगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि स्कीमर को जरूर चेक कर लें, क्योंकि जो ही ATM जाएगा वो उसका कॉपी होके बाहर जरूर आएगा, लेकिन थोड़े टाइम बाद। तो ये जरूर चेक कर लें। अगर सपोज उसमें लगा हुआ Excuse me, sir. क्या सर वो ATM ले लेगा, ATM की कॉपी ले लेगा, लेकिन उसमें पिन तो होगा नहीं ना अपना। वो सारी इन्फॉर्मेशन पिन कोड एक जस्ट जब आपका स्कीमर मतलब मींस आपकी जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड आपका जब कॉपी होता है तो उसके साथ उसका डेबिट जो पिन नंबर वगैरह वो सब कॉपी हो जाता है। तो सर पिन तो अपन रखते हैं ना, पिन उसके बाद कैसे जाएगा? सिंपल सी चीज है, जो बंदा जैसे मैं हूँ, मैंने उसमें एक स्कैनर लगा रखा है जो आपका क्रेडिट कार्ड कॉपी कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो पहली बात तो वो ATM ही फ्रॉड है। तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे ही आप उसमें टाइप करोगे तो वो अपने आप ही उसमें चला जाएगा। अगर ATM ओरिजिनल है तो इसका मतलब ये उसमें स्कीमर होगा ही नहीं। सिंपल सी चीज है। So excuse me. Sir, in an ATM which is a fraud one, skimmer जो डिवाइस होता है वो at around मेरे हैंड जितना होता है, वो छोटा सा ही होता है skimmer, and वो almost वो the same color of the ATM, उसी स्लॉट पे हम फिक्स कर देते हैं उसको। बट अगर मैंने ATM से 3, 4 या 5, 6 लोगों ने मतलब मान भी जाए कि अगर जो वल्नरेबल पर्सन है, जो कल्प्रिट है, वो बाहर बैठा है ATM की और वो देख रहे हैं कि 5-6 जने जाकर के उस स्कीमर पे आपने कार्ड लगा दिया है, बट उसको कैसे पता चलेगा कि पिन्स तो हमारी ATMs में सेव नहीं होती? मतलब वो ऐसे पता चलेगा जैसे सर ने मुझे बताया कि वो ऐसे पता चलेगा कि ऊपर कई बार वो कैमरा भी लगा होता है,
तो कैमरा इमेज ले रहा होता है आपने जो पेन टाइप की है, इसलिए एक सर ने ये भी बताया कि उसके ऊपर एक पेपर चिपका हुआ होता है, उस पेपर को ही इतना लाइट होता है कि उसके ऊपर जब टाइप करते हैं तो सेम इम्प्रेशन विल कम। सो ऊपर कैमरा से भी पिक्चर ली जा सकती है और वो ट्रांसपेरेंट जो स्टिकर उसके ऊपर लगा होता है जिसके उसका इम्प्रेशन आ जाता है, उससे भी पता चल सकता है। ओके, दिस इज श्योर मिस्टर संजय जी ने आपको समझा दिया। अब जो स्कीमर जो उसमें लगाते हैं, ओके, वो दे आर नॉट सिटिंग आउटसाइड, वो आराम से उसको लगा के चले गए। ओके, एट पर द डिवाइस जो उसकी फ्रेम होती है, आप उसको नोटिस करना, itself it has a CCTV camera inside the machine. आप always check करना. So that system has been hacked. So if you are typing anything onto the pad, so everything has been recorded. So one thing you always take care while typing your passwords, always keep your head above. It is a simple thing, but by this you can take a very good precautions. तो जब आप अपना हाथ ऊपर दे देते हो तो आप कौन से पासवर्ड या बटन एंटर्स करें, दे डोंट नो अबाउट दिस। ओके, मैं सर के लिए एक बात और बताना चाहूँगा कि सपोज आपने एटीएम, पहली बात तो ये एटीएम स्कैनर उसमें लगा है तो उस एटीएम को यूज ही मत करो, क्योंकि उसमें एटीएम स्कैनर में की लॉगर जरूर होगा। की लॉगर कौन कौन जानता है? की लॉगर का मतलब ये होता है, अगर मैंने इस कंप्यूटर में डाल दिया तो इसके कीबोर्ड में जो जो अक्षर में टाइप करूंगा वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएंगे। तो एटीएम में की लॉगर डला हुआ होना कोई मामूली बात नहीं है, बहुत इजीली डल जाता है। एक छोटा सा कार्ड स्वैप डलता है, उसके बाद उसमें की लॉगर ऑन हो जाता है। तो की लॉगर अगर है उसमें तो इसका मतलब उसमें स्कैनर भी होगा, और स्कैनर है तो आपको वो पता चल जाएगा। इसलिए स्कैनर ढूंढिए। अगर स्कैनर है तो आप एटीएम का जो मेन हेड है उससे कॉन्टैक्ट कीजिए या बैंक से कॉन्टैक्ट करके उनको बता दीजिए। Now we all know इंडिया में कितने सारे लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं, बट you will be shocked to learn that India is the home to highest number of digitally illiterate people who have an online presence. Now this is very surprising. They all are digitally illiterate, but they are present online. So their security, money is clearly under threat. For example, अभी हम देखते हैं सब्जी वाले भैया, रिक्शे वाले भैया या ऐसे कोई भी लोग, सब लोग प्रेजेंट हैं, फेसबुक पर भी हैं, सब जगह हैं, लेकिन ये डिजिटली उतने अवेयर नहीं है कि हमें क्या चीज़ यूज़ करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं। ऐसे में ये अपनी कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, कुछ बैंक अकाउंट या ऐसी चीज़ें उसके अंदर डाल के रखते हैं ऑनलाइन। तो जस्ट इमेजिन हैकर्स कितने ईजिली उनकी इन्फॉर्मेशन यूज़ कर सकते हैं, एंड दे जस्ट नॉट इवन नो कि उनके साथ क्या हुआ है। So you should be very aware. Now we'll talk about internet banking. Internet banking facilitates the customers for online financial transactions. ठीक है, इस वाली कंडीशन में we should always remember that convenience comes at a risk. हमें कोई चीज़ मिल रही है तो उसके साथ रिस्क भी attached है. Fraudsters can make your life unsafe and miserable. Online banking features are financial transactions such as account to account transfer, bill payment, wire transfer, etc. ये हम अपनी day-to-day life में use कर रहे हैं. Also, funds can be transferred between the customers. लोन पेमेंट कर सकते हैं हम इंटरनेट बैंकिंग से. अपडेट ऑफ सेविंग्स अकाउंट, ऑनलाइन बैंक स्टेटमेंट. तो ये सब चीज़ें हैं जो हम इंटरनेट बैंकिंग से करते हैं, तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. सबसे इम्पोर्टेंट एंड में, वैसे आई नो यू ऑल आर वेरी स्मार्ट, लेकिन हमें एंड में ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए. हमने इतना सारा डिस्कशन किया, अब हम सबको मालूम है हमें स्मार्टफोन, इंटरनेट, अपने फेसबुक, सोशल मीडिया किस तरह से प्रोटेक्टेड रखने चाहिए. तो हम जितना विजिलेंट रहेंगे, जितना प्रोटेक्टेड रहेंगे, उतनी ही हमारी चीज़ें सेफ रहेंगी. सो अब हमने ये सारी चीज़ें यूज़ कर ली हैं, ध्यान दे लिया है, समझ लिया है, तो किसी भी प्रॉब्लम में ट्रैप आउट ना हो. आप लोग इंडिया के यूथ हैं, आप लोग को ध्यान रखना चाहिए ईच एंड एवरी स्टेप पे. So I thank you all for being patient and listening to me. I will now hand over the mic to Mr. Rajendra Sharma, DYSP, so that he can advise us and enlighten us on the कॉलेज के मैनेजमेंट और संजय बियानी जी को और
टीम है इनकी, जैन साहब की, उनको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। साइबर क्राइम की अवेयरनेस के लिए स्पेशल रूप से गर्ल्स कॉलेज को इन्होंने चुना है। और हम जो आए दिन देखते हैं पुलिस स्टेशन पे महिलाएं, गर्ल्स सोशल साइट की और सभी तरह के साइबर क्राइम के शिकार होकर आती हैं। उसके कई कारण हैं, मुख्य कारण तो अवेयरनेस है। और अभी जो अवेयरनेस के पॉइंट आपको करीब हर सेक्टर के बताए गए, क्रेडिट कार्ड के बारे में बताए गए, सोशल साइट्स के बारे में बताए गए, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के बारे में बताए गए, ATM डेबिट कार्ड के बारे में सावधानी बताई गई। यदि ये सब सावधानी आप लोग डे टू डे में बरतते हैं तो मैं नहीं समझता कि आप आए दिन ऐसे शिकार होने से बचेंगे। ऐसा कोई टूल है नहीं जो बिल्कुल 100% सेफ किया जा सके, लेकिन अवेयरनेस ऐसी चीज़ है कि आप खुद भी अपना बचाव कर सकते हैं और आपके फ्रेंड्स हैं, आपका परिवार है, उनको भी और ज़्यादा जागरूकता बता के उनका भी बचाव कर सकते हैं। क्योंकि साइबर क्राइम नई चीज़ है। इस टेक्नोलॉजी का यूज विशेष रूप से 2000 के बाद से ज़्यादा बढ़ा है। और जब से एंड्रॉयड फ़ोन आया है तो हर आदमी इंटरनेट यूजर हो गया। मतलब जो मोबाइल फ़ोन लगता है तो आधे से ज़्यादा लोग मोबाइल फ़ोन में एंड्रॉयड यूजर हैं। और एंड्रॉयड यूजर वो लेते हैं एंड्रॉयड फ़ोन इसलिए है कि वो इंटरनेट का यूज़ कर सके, सोशल साइट का यूज़ कर सके, ईमेल वगैरह सारा उस पर देख सकें और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी कर सकें। तो इसके लिए अवेयरनेस ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके लिए जब क्राइम बढ़ रहा है तो सरकार ने सन 2000 में इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 बनाया। उसमें काफ़ी चीज़ों को जो साइबर क्राइम से संबंधित हैं सबको उसको पैनल में रखा। इसके बाद भी क्राइम बढ़ता गया लगातार। तो सन 2008 में बड़ा अमेंडमेंट आया जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट 2008 है। उसमें काफ़ी चीज़ें स्पेशली जो सोशल साइट से संबंधित थी, पासवर्ड हैकिंग का था और पोर्नोग्राफिक्स है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, इनको ज़्यादा उसमें पनिशमेंट बढ़ाया और उसमें दंड भी ज़्यादा बढ़ाया है। तो जब मैं कानून के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि महिलाओं की से ज़्यादा सबसे ज़्यादा पीड़ित महिलाएं होती हैं सोशल साइट पे और सबसे कम कंप्लेंट भी उनकी आती हैं। कारण कई कारण हैं। कुछ सामाजिक परिवेश भी अपना इस तरह से है कि वो नाम भी नहीं बताना चाहती, परिवार की बदनामी भी होती है, खुद की भी होती है और भी कई इशू होते हैं, इसलिए रिपोर्ट कम होता है। और जो रिपोर्ट आती है तो कई बार घर वाले का दोष शायद कर देते हैं। लड़की हिम्मत करती है कि नहीं मैं तो रिपोर्ट कराऊँ उसके खिलाफ, लेकिन घर वाले भी उसको शांत करते हैं कि रहने तो बेटा कोई बात नहीं, बाद में। या कुछ लड़कियां आपस में उसको दबा लेती हैं। लगातार कोई लड़का उनको विक्टिमाइज कर रहे हैं, SMS भेज रहा है, MS भेज रहा है या और कोई आपको व्हाट्सएप पे कुछ भेज रहा है या मेल भेज रहा है। आपस में फ्रेंड्स को भी नहीं बताती और किसी को नहीं बताती। फिर जब बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तब फिर पता पड़ता है, या फिर घर वालों को बताते चुपके से या किसी और के थ्रू उनको पता लगता है या कोई अचानक आवाज़ समागे कोई घटना करने की सोचती है, जब पता लगता है तो फिर थोड़ा सा देर हो जाती है। इसलिए मैं सबसे कहना चाहूँगा कि इस तरह की कोई आपके साथ कोई अटैक होता है या कोई इस तरह का ऑब्सीन मैटेरियल आपके पास आता है, ये चाहे आपके फ्रेंड ने भेजा हो चाहे किसी दोस्त ने भेजा हो, उसको डिस्करेज करें उसी वक्त, ताकि दोबारा तो कम से कम आपको नहीं भेजे। और फिर भी जो आपको भेज रहा है तो निश्चित रूप से बोल्ड होकर उसकी कंप्लेंट आपके जो होटल में रहते तो होटल वार्डन को बताएं, घर में रहे तो पेरेंट्स को बताएं, और फिर जो भी प्रोसेस है लोकल पुलिस स्टेशन पे, साइबर पुलिस स्टेशन पे उसको जरूर बताएं। एक बार जब बता देंगे तो एक बार एक आदमी के खिलाफ जब एक्शन होता है तो उसका मैसेज काफी लोगों के पास जाता है। तो वो भी 50 लोगों के पास उसका परिवार होता है, उसका एक समाज होता है, उसको पता पड़ता है। तो इस घटना में कमी आती है। आप उसको दबाते हो तो फिर घटनाएं ज्यादा फैलती है। तो काफी सेक्शन का नंबर बताने से कोई महत्वपूर्ण नहीं है। सोशल साइट पे कोई भी अब्यूजिंग हो रहा है आपके साथ, वो साइबर क्राइम के तहत भी दंडनीय है। इसके अलावा पेनल कोड में भी दंडनीय है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक नई रूलिंग दी है, इसमें 66A जो IT एक्ट है जिसमें सारे सोशल अब्यूजिंग उसको कवर किया गया था, उसको भी हटा दिया थोड़े दिन के लिए। अभी तो परमानेंट आया है, लेकिन हो सकता है सुप्रीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें वापस प्रयास कर दिए इसको रिस्टोर कराने के लिए।
बाकी आपके जो पासवर्ड को चुरा के यूज करता है, कोई आपका मोबाइल फोन, आपकी आइडेंटिटी से कोई फेसबुक आइडेंटिटी बना लेता है दूसरी, इसके सबके ऑफेंस उसमें साइबर क्राइम में कवर किए हुए हैं। आपके साथ कोई एटीएम क्रेडिट कार्ड की धोखाधड़ी होती है, उसके भी सारे उसमें कवर किए हुए हैं। तो अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है। और मैं चाहूँगा कि मैं ज़्यादा बोलूँ, आप अपनी क्या समस्या समझते हैं कि यदि आपके साथ किसी तरह का लग रहा है साइबर क्राइम होता है, तो आप क्या पुलिस से अपेक्षा रखते हैं, या आप किस तरह से चाहते हैं कि ऐसा हो? तो मैं आपको ज़्यादा बताऊँगा कि इसकी ये व्यवस्था सारी मौजूद है। आप ईमेल कर सकते हैं हमारे को, व्हाट्सएप पे भी मैसेज भेज सकते हैं पुलिस स्टेशन के नंबर पे, मोबाइल नंबर भी हमने दे रखा है सभी को, और मेल आईडी है पुलिस स्टेशन की, उस पर आप मेल कर सकते हैं। आप लोग बचाओ, आप लोग कुछ क्वेश्चन करें जो पुलिस के बारे में कई भ्रांतियाँ भी रहती हैं कि थाने पे जाएंगे पुलिस FIR दर्ज होगी नहीं, हमारा नाम अखबार में नहीं आना चाहिए। कई बातें ऐसी होती हैं जो प्रिकॉशंस की होती हैं, उसके बारे में आपको बता सकता हूँ कि कोई नाम नहीं आता, पीड़ित का नाम हम बिल्कुल नहीं देते, हम भी नहीं चाहते कि कोई भी, पहली बात तो हिम्मत होता ही नहीं किसी को शिकायत करने की। अपनी शिकायत करने की हिम्मत होती है तो उस बात से भी डरते हैं। समाज में भी कुछ ऐसी व्यवस्था बनी हुई है कि इस तरह का नाम नहीं आना चाहिए जिसके साथ ऐसी घटना हुई है, तो कानून में ऐसे प्रावधान है। तो आपको ये मैं सलाह देता हूँ कि इस तरह की घटनाएं होती हैं, इसको डिस्करेज करें। जिसने मैसेज दिया है कोई आपको जानता भी होगा, अनजान भी मैसेज आते हैं, और अनजान मैसेज के बारे में, मोबाइल फ़ोन के बारे में सबसे बड़ी सलाह ये देना चाह रहा हूँ कि जो जिस नंबर को आप पहचानते नहीं है, आपके पास उसके फ़ोन आते हैं, तो आप उनको मतलब उसको उठाए नहीं। जो आपका जानकार का फ़ोन हो गया, आपके कॉन्टेक्ट उसका नाम है, तो आप बात करें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो एप्रिचित के फ़ोन आ रहे हैं या ओड आवर्स में फ़ोन आ रहे हैं, उनको बिल्कुल अवॉइड करें। व्हाट्सएप पे किसी फ्रेंड ने या किसी जानकार ने आपको मान लो कोई ऐसा SMS भेज दिया, या कोई ऐसे फोटोग्राफ भेज दिया, कोई वीडियो भेज दिया जो आपको खुद को लग रहा है कि ठीक नहीं है, तो आप कम से कम उसको किसी आगे अपने फ्रेंड को मत भेजिए, आगे कोई फॉरवर्ड बिल्कुल मत कीजिए। क्यों आप आगे आप किसी को फॉरवर्ड कर देंगे तो आप तो उसके मुलजिम आप हो जाएंगे। या आदर्श नगर में एक स्कूल है, गर्ल्स कॉलेज के स्कूल भी है, वहाँ की एक लड़के के पास जो 9th क्लास का लड़का, उसका एक फ्रेंड रहता है UK में, उसने एक MMS भेज दिया, और उसने लापरवाही करते हुए या अज्ञानता, मालूम 9 साल का बच्चा है, 9th में पढ़ता है, तो 12-13 से 14 साल का होगा, उसने उसको आगे अपने टीचर को फॉरवर्ड कर दिया। टीचर को फॉरवर्ड कर दिया तो टीचर तो सकपका की अचानक ये क्या हुआ, उम्मीद नहीं कर सकती कि 9th क्लास का बच्चा उसको इस तरह का वीडियो भेज सकता है। तो उसे तुरंत पुलिस में कंप्लेंट कर दी, अपने स्कूल को बताया, स्कूल से पुलिस में आ गया। इन्वेस्टिगेशन पता पड़ जाएगी तो अपने स्कूल में बच्चा है, 9th क्लास में पढ़ता है, तो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हो गई और साबित भी हो गया हाँ भाई इसने अपने मोबाइल फोन से आगे भेजा है इसने। तो ये बात थोड़ी सावधानी की बात है, ठीक है, चाइल्ड था उसके खिलाफ, चाइल्ड के हिसाब से पुलिस की कार्रवाई हुई। लेकिन इस तरह का कोई आपके पास SMS आता है, कोई व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, या आपके पास कोई ईमेल में आता है, तो कम से कम आप उसको आगे फॉरवर्ड बिल्कुल नहीं करें। आप उसके खिलाफ कार्रवाई करनी है, आपको नहीं करनी है तो आपको डिसाइड करना है, लेकिन उसको आगे किसी कीमत पर फॉरवर्ड नहीं करें। और बहुत बातें हैं जो काफ़ी बातें इसमें बताई गई है। मैं चाहता हूँ आपकी तरफ से कोई ऐसी क्वेरी आवे, मैं उसका जवाब दूँ, वो ज़्यादा शेयर होगा, आपको भी बेनिफिट मिलेगा। संजय साहब आप उनको प्रोत्साहित करो, ये कुछ बातें मुझे कुछ अपनी समस्याओं से संबंधित जो समझती हैं तो मैं उनके बारे में बताऊँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि अब आप लोग सभी लोग तो मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हो, सभी लोग इंटरनेट एक्सेस करते हो, फेसबुक यूज़ करते हो। आप फेसबुक के बारे में यही है कि कम से कम चीज़ें, आपकी पर्सनल चीज़ें कम से कम उस पर डालें। आपकी फोटो तो बिल्कुल नहीं डालें। सर ये तो बहुत मुश्किल काम लगता है, क्योंकि गर्ल्स अपनी फोटो ना डालें, गर्ल्स ब्यूटी पार्लर ना जाए, गर्ल्स अपनी फोटो ना खिंचाए। देखो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, एक तो होता है आपका ईमेल अकाउंट। ईमेल अकाउंट होता है पर्सनल, जो आपका पासवर्ड पे आप भी खोल सकते हो, दूसरा खोल नहीं सकता। फेसबुक है एक सोशल साइट, जैसे आप समझते हैं अखबार है, जो अखबार सब जगह बढ़ता है ना, तो आप किसी को ये नहीं कह सकते कि भाई ये पेज मत पढ़ना, वो पेज मत पढ़ना, या इस पेज में कोई चीज़ इसकी फोटो किसी को दिखाना मत। तो सोशल साइट है सब कुछ देखने के लिए, सब कुछ दिखाने के लिए। तो सोशल साइट और आपके ईमेल अकाउंट में इसमें अंतर समझो। ईमेल में आप कोई भी प्राइवेट आपका मैसेज भेज सकते हो, आप ले भी सकते हो, जो केवल आप तक रहेगा क्योंकि वो पासवर्ड से लॉक है। लेकिन फेसबुक एक सोशल साइट है, जैसे प्लेटफॉर्म है। अब यहाँ पे कोई 10 आदमी आएंगे और आप सामने 10 बैठे हो तो
देखना आप लोग, ऐसे नहीं बैन कर सकते हो। तो सोशल साइट आपकी पर्सनल अकाउंट पर्सनल है, लेकिन जो आपने चीज मेटेरियल डाली है ना वो क्लाउड में चला गया, उसको सब सारी दुनिया देखेगी, हिंदुस्तान की पूरी दुनिया देखेगी। तो उसमें भी कुछ फीचर्स हैं, सिक्योरिटी फीचर्स हैं, उनको भी आप लागू करें। और जो फ्रेंड्स बनाने, फ्रेंड्स में चूजी बने, जितनी आपके पास फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रही है सबको यस करते जा रहे हैं, तो आप तो फिर समझो कि 10-12 घंटे तो फेसबुक में खत्म हो जाएंगे आपके। और फेसबुक के इतने फ्रेंड बना लीजिए जिनको आप जानते भी नहीं है। और कई तो लोग ऐसे जो फेसबुक फ्रेंड से फिजिकली मिलने चले जाते हैं। पूना की एक लड़की, IT के पढ़ने वाली लड़की, अपने फेसबुक फ्रेंड से मिलने आगे पूरा आगे, फिर पता पड़ेगा कि रामगंज में वो लड़का तो कबड्डी का काम करता है। तो ये है, ये सोचने की बात है कि फेसबुक का फ्रेंड है जिसको आप केवल उसने जो फोटो दिखा रखी है या उसने जो एक ID डाल रखी है, आप उसको इतना जानती है, बातें अच्छी बताया कर रहा है, चैटिंग अच्छी कर रहा है, लेकिन एक्चुअल वो है कौन, क्या उसका सोशल स्टेटस है, जो उसने आइडेंटिटी डाल रखी वो व्यक्ति वो है भी नहीं है, ये बातें कैसे होंगी? फेसबुक से तो आप वेरिफिकेशन नहीं कर सकते। हम आए दिन रोजाना इन्वेस्टिगेशन केसेस ही करते रहते हैं, स्पूफ मेल आते हैं, फिशिंग मेल्स आते हैं, लोग धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं, लॉटरी का लालच में आ जाते हैं, इंश्योरेंस के लालच में लोग आ जाते हैं। फेसबुक फ्रेंड के में कॉमर्स राजस्थान यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर, कितनी पढ़ी लिखी होती है प्रोफेसर, सीनियर प्रोफेसर, फेसबुक फ्रेंड में आगे और करीब 17-18 लाख रुपए उसने उसके ठेले से जमा करा दिए, और बाद में पता पड़ा तो कुछ है ही, कुछ नाइजीरिया हैकर था। तो ये है कि फेसबुक पे फ्रेंड सोशल साइट यूज करना कोई दिक्कत नहीं है, आराम से यूज करो, लेकिन प्रिकॉशन बरतें उसमें, क्यों वो टाइम पास का नहीं है। स्टूडेंट लाइफ में टाइम कितना मिलता है आपको, जितने आपके लंबे छोटे सिलेबस होते हैं, कोर्सेज होते हैं, कोचिंग होती है, टाइम ही नहीं, फिर भी आप फेसबुक अपने दोस्तों से सभी से जुड़ने के लिए जरूरी है यूज करना, यूज करें, लेकिन उसकी जो सिक्योरिटी के लिए जो अवेयरनेस जरूरी है वो बहुत उसको यूज करें। ऐसे आप ई-कॉमर्स में कर रहे हैं, कोई भी वेबसाइट खोली, आपने तो अपना पासवर्ड डाल दिया, उसको देखे तो सही कौन सा वेबसाइट खुली है, जो आप खोलना चाह रहे वही खुली है नहीं खुली है। अभी सर ने बताया कि HTTP के आगे S और लगना जरूरी है, S उसके लगा हुआ है तो सिक्योर्ड है, S नहीं है अब आपने ध्यान ही नहीं दिया, सही नहीं, स्पूफ मेल आ गया किसी फ्रेंड का, आपने देखा मेल सही लगा फ्रेंड है, अब देखो उसको पूरा मेल को पढ़ो, एक अक्षर उसको पढ़ो, जब पता लगा कि कहीं न कहीं कोई बिंदु कोमा अंतर है उसमें। तो एनी क्वेश्चन मैं चाहूँगा कि बहुत सारी बातें हैं जो वन वे ट्रैफिक हुआ है, अब हम चाहते हैं कि आपके कोई क्वेश्चन हो जो सर से आप पूछना चाहें, क्योंकि एक्सपर्ट्स हैं, तो प्रॉब्लम वो होनी चाहिए जो आपकी अपनी हो। तो आज के एनी क्वेश्चन अगर जो आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा है तो मैं आप लोगों से अपील करूँगा कि क्वेश्चन पूछिए। यस सर कहते हैं कि फेसबुक पे कितने लगानी चाहिए, लेकिन व्हाट्सएप पे क्यों नहीं लगानी चाहिए? व्हाट्सएप देखो, ये फेसबुक और व्हाट्सएप क्या है, ये US के सर्वर्स है, US की वेबसाइट है जो वहाँ से संचालित होती है, और जो वहाँ से संचालित हो रही है तो वहाँ के कानून से संचालित हो रही है, हिंदुस्तान के कानून से वहाँ संचालित हो रही है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो सेवाएं दे रही है आपसे कोई चार्ज नहीं ले रही। जैसे आप कोई बाजार में कोई समोसा बेच रहे हैं, बिना पैसे में बेच रहे हैं, आप उसको ये शिकायत नहीं कर सकते इसमें थोड़ी मिर्च ज्यादा है या मीठा कम है, नमक कम है, समझ रहे हैं मेरी बात का मतलब। व्हाट्सएप की सेवाएं, पहले आप SMS करते थे किसी को, आपको 50 पैसे या 1 रुपये को चार्ज होता था, और MMS करते उससे ज़्यादा चार्ज होता था। अब व्हाट्सएप पे आप वीडियो भी भेज रहे हो, फोटो भी भेज रहे हो, और आपका मैटर भी भेज रहे हो, कोई डॉक्यूमेंट का भी कॉपी करके भेज रहे हो, कोई चार्ज आपका नहीं लग रहा। तो कोई ये जो फ्री की सेवाएं उसमें वो कहते हैं बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स, वो वाली कहानी हो रही है कि अब आप व्हाट्सएप का सर्वर एक बेसिकली क्या है आपको बताऊँ, उसका सिस्टम ये रनिंग सर्वर है, ये आपकी मेमोरी रख नहीं सकता, रख नहीं रहा, मतलब अभी व्यवस्था में नहीं रखने की। तो 1000 करोड़ से ज्यादा लोग एक साथ यूज कर रहे हैं पूरी दुनिया में व्हाट्सएप को और फेसबुक को, तो इतनी मेमोरी उसके लिए डाउनलोड और सिक्योर रखना भी बड़ा मुश्किल है, वो बिना पैसे में। तो वो हिंदुस्तानी कानून से बात ही नहीं है। जब उसको अलाउ कर दिया गवर्नमेंट ने, तो वो अपने कानून के मुताबिक आया है। जब चाइना ने फेसबुक को बैन कर दिया तो वहाँ कोई यूज नहीं फेसबुक का, उसने फेसबुक के बजाय दूसरी सुविधा दे रही थी लोगों को। फेसबुक ने अपनी शर्तें बदलने को तैयार नहीं थी। फेसबुक जहाँ भी सेवाएं दे रही है वो अपनी शर्तों के मुताबिक सेवाएं दे रही है, उनको फ्री की सेवाएं दे रही है। ये व्हाट्सएप वाली है, तो व्हाट्सएप को बैन इसलिए नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फैसला है। तो इसमें आप प्रिकॉशन जितना ज्यादा बचेंगे, जितना ज्यादा प्रिकॉशन बरतेंगे, उतनी आप सेफ रहेंगे। लेकिन सर जो प्रोफाइल पिक हम लगाते हैं व्हाट्सएप पे, उसमें प्राइवेसी करके रखते हैं, तो फेसबुक की तरह उसका मिसयूज थोड़ी हो सकता है।
फेसबुक पे फोटो का मैसेज क्या होता है, फोटो जो आपकी लगी हुई है व्हाट्सएप पे, वो फोटो का फोटो तो लिया जाता है ना, कहीं भी आपकी फोटो लगी हुई है उसकी फोटो तो कोई भी ले सकता है, उसका व्हाट्सएप पे यूज जब मिसयूज कोई करेगा तो वो एक अलग उसको टेक्निक यूज करेगा, दूसरे कैमरे पे ले जाएगा, उसमें कुछ चेंज करेगा फोटो में, वो एक अलग ऑफेंस है, वो अलग प्रक्रिया है। व्हाट्सएप पे तो जितना मैसेज जैसा डाल रखा वो मैसेज वैसे रहेगा, उसमें बाद में कोई मानो वो एडिट करता है कुछ कोई भी चीज, वो एक अलग चीज होगी। पर सर ये कोई इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास भी कि व्हाट्सएप की जो इन्फॉर्मेशन है वो अभी प्रेजेंटली उसको सिक्योर नहीं कर रहा, सेव नहीं कर रहा, इज इट राइट? है ना, फेसबुक वो सर्वर है व्हाट्सएप का, वो व्हाट्सएप सर्वर रनिंग सर्वर है, वो कोई डाटा सेव नहीं करता, न किसी वो जो एलई है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी पूरी दुनिया में किसी को भी नहीं देता डाटा। यस वो सेफ है, व्हाट्सएप इज मोर सेफ देन फेसबुक। और मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब व्हाट्सएप के थ्रू या फेसबुक के थ्रू या ईमेल के थ्रू आप कभी कोई अपने आप को विक्टिम मानती हैं कि किसी ने ऐसा कोई मैसेज भेज दिया और आप ये समझते हैं कि इसके खिलाफ कार्रवाई मुझे करानी है, तो उस मटेरियल को आप डिलीट नहीं करें तुरंत, तो डिलीट नहीं करें, आपके लैपटॉप में उसका प्रिंट स्क्रीन निकाल के रख लीजिए, सेव करके रख लीजिए, और जब पुलिस में कंप्लेंट देंगे तो वो मटेरियल बड़ा इंपॉर्टेंट है। यदि आपने आते ही डिलीट कर दिया उसको तो फिर बताने के लिए कुछ रहेगा नहीं। व्हाट्सएप पे कोई चीज़ आई आपने डिलीट कर दी, अब फिर शिकायत करने पुलिस थाने पे कि साहब ऐसे जो मैसेज भेजा था हमने कहा कि सर मैं तो डिलीट कर दिया। तो ये जरूर ध्यान रखें, यदि कोई इस तरह का मैटर आपके पास आया है, जो कोई फोटोग्राफ किसी बदमाश ने डाली है, तो उसको पुलिस में रिपोर्ट करने तक उसको सेव रखें। वेरी सिंपल आइडिया। एनी अदर और कोई पूछना चाह रहा है कुछ? यस, लास्ट वन बिकॉज वी हैव लिमिटेड टाइम, so this is your last query, please ask. So there are many web browsers like Internet Explorer, Mozilla. So which is the best one you suggest to use? Mozilla Firefox ये ओनली सर्च इंजन है, ये आपकी कोई मेमोरी नहीं रखेंगे अलग से, ये आपको इंटरनेट से जोड़ने के लिए काम करने वाली चीज है। So किसी भी ये ओनली सर्च इंजन है। मोजिला फायरफॉक्स दोनों ही एडवांस वर्जन के हैं सारे, तो ये तो केवल आपको सर्च करने के, जैसे आप कोई मेल देना चाहते हैं किसी को, आप कोई वेबसाइट खोलना चाहते हैं, इंटरनेट से जुड़ने के लिए तो सर्च इंजन है, इसके अलावा कुछ नहीं सीखा था। एंड सर जो लॉक पैटर्न्स होते हैं मोबाइल्स में, तो बेस्ट कौन सा है? पैटर्न यूज करें, पेन यूज करें? सबसे बेस्ट लोग वो होता है जो आप उसको छुपा के रखते हैं। आसान भी लगा लिया लेकिन आप छुपा के यूज करते हैं तो वो आपके लिए बेस्ट है, और बहुत मुश्किल बना लिया सबके ओपनली यूज कर रहे हैं तो कोई बेस्ट नहीं होगा। थैंक यू सर। Thank you very much sir for giving such precious information to the students. Thank you very much. Last one, promise. सर अभी 1 ईयर पहले मेरा फ़ोन डूब गया था, तो उसके अंदर जैसे अपन पासवर्ड तो लगा रखा था उसमें, बट फिर सर उसके अंदर मेमोरी कार्ड होते हैं तो वो तो इजीली आप निकाल के यूज़ कर सकते हो फ़ोन में से। तो सर उसकी कंप्लेंट करवाई थी मैंने पुलिस स्टेशन में, बट मैं तो ये पूछना चाह रही हूँ कि अगर उसके पासवर्ड लॉक्ड है, वो फ़ोन सिक्योर्ड है, तो तब भी उसका मिसयूज़ हो सकता है। पासवर्ड ट्रैकर टूल आते हैं, पासवर्ड ट्रैक करना कोई बड़ी बात नहीं। यदि आपका फ़ोन या आपका लैपटॉप कोई भी चीज़ हो गई है तो वो यूज़ किया जा सकता है। सर उसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए थे कि किसी तरह ट्रैक हो जाए फ़ोन, और पर उसका कोई फ़ोन तो ट्रैक हो सकता है। फ़ोन यदि आपका मिसिंग है तो आप उसका IMEI नंबर जो जहाँ पे रिपोर्ट कहाँ कराई आपने? सारा वेरिफिकेशन सब करवा दिया था। कहाँ कराई थी रिपोर्ट आपने दर्ज? शास्त्री नगर। कितना टाइम हो गया? 1 ईयर हो गया सर। 1 ईयर। 1 ईयर तो उसमें क्या होता है मैं आपको बताऊँ, इसका प्रोसेस क्या होता है। जैसे तो मोबाइल फ़ोन होता है और जिस चीज़ को फिर बाद में मिलता है होता है या चोरी होता है, तो जैसे ही जो बदमाश चोरी करता है उसको तुरंत कुछ दिन बाद उसी वक्त यूज़ नहीं करता, वो या तो किसी को बेच देता है, जो खरीदता है जो बिल्कुल सस्ता है, जैसे आपको 20,000 का मोबाइल फ़ोन खोया है तो वो मुश्किल से 2-3 हज़ार रुपये में आगे बेचता है, तो 2-3 हज़ार रुपये में जो आदमी खरीदता है 20,000 का मोबाइल फ़ोन, वो भी जानता है कि फ़ोन चोरी का है, तो उसको महीने 20 दिन बाद में कहीं यूज़ करने का मौका मिलता है। अब पुलिस स्टेशन में आपने रिपोर्ट दर्ज कराई तो वहाँ पुलिस में एक्चुअल में जो हमारी कमियाँ बताऊँ सिस्टम की उसमें ये है कि उसे जैसे ही आपने मोबाइल फ़ोन रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई 1 साल पहले, उसकी IMEI सर्च कराई होगी,
iOS सर्च कराई तो उसमें तो नील रिपोर्ट आ गई होगी कहीं से, क्यों? जब तक वो यूज हुआ नहीं होगा। तो इसलिए यदि आप मेरे को रिपोर्ट करेंगी, मुझे बताएंगी, तो उसके अब 1 साल हो गया, निश्चित रूप से कोई ना कोई फोन का यूज कहीं भी कर रहा होगा। तो अब उसकी IMEI सर्च सभी मोबाइल कंपनी से कराएंगे तो निश्चित रूप से कहीं कहीं से पॉजिटिव रिपोर्ट उसकी आएगी। अब पॉजिटिव रिपोर्ट आएगी तो पता लग जाए कहाँ यूज हो रहा है। तो जो मोबाइल फोन के बारे में आप ही सब ये देखें, यदि किसी का मोबाइल फोन खो जाता है और पुलिस स्टेशन पे जब आप उनकी रिपोर्ट कराते हैं तो 2, 4, 5, 10 दिन में ही हाथों हाथ उसकी IMEI सर्च कराएंगे तो 99% रिपोर्ट आती है। लेकिन उसकी 2, 3, 4 महीने बाद यदि कराते हैं या उसके और बाद कराते हैं, सेकंड IMEI चेकिंग कराते हैं तो निश्चित रूप से पॉजिटिव रिपोर्टें आती हैं। सर अगर अभी हम बिल्कुल हाँ, So you can give the copy to us, so we'll forward यदि वो this. कंप्लेंट की कॉपी आप मेरे को दे सकते हैं, FI copy. साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन भिजवा ले या वो मेल भिजवा ले तो मेल पे अटेंड करते हैं और रिटर्न तो सीधे लेते हैं कंप्लेंट। तो IMEI सर्च करा देंगे, प्रेजेंट में कहीं तो इंडिया में यूज हो रहा होगा तो वो उसको मालूम लग जाएगा। तो अभी दूसरी प्रॉब्लम एक ये है कि राजस्थान करीबन 7 करोड़ लोग यहाँ पे रह रहे हैं। 7 करोड़ में से माने तो 3.5 करोड़ भी अगर ये फैसिलिटी यूज कर रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं, पर 3.5 भी माने तो इन सब के बीच में सिर्फ साइबर क्राइम एक ही पुलिस स्टेशन है जो हमारे जयपुर में बिल्कुल हमारे पास ही है। तो अगर कोई इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो राइट पुलिस स्टेशन जाना भी जरूरी है जो उस चीज़ के एक्सपर्ट हो। तो अपनी जो पुलिस एकेडमी है शायद वहीं सर प्रोबेबली एक ही है, पुलिस एकेडमी कैंपस में ही एक पुलिस स्टेशन है। तो यू आर फॉर्चुनेट कि आप जोधपुर, बांसवाड़ा, जालोर नहीं है राजस्थान में, और आपके कॉलेज के बिल्कुल पास में 3.5 किलोमीटर डिस्टेंस पे साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है। फॉर्चुनेट, यू ऑल आर फॉर्चुनेट। वैसे तो जिंदगी कैसे जी, ये सब टेक्नोलॉजी की तो बात कर रहे हैं, पर जिंदगी ऐसा ना जिए जिसको छुपाना पड़े, कुछ ऐसा काम ही ना करे जिसे छुपाना पड़े। तो ये तो बेस्ट स्ट्रेटेजी है ना, जिंदगी खुली किताब की तरह रहे, कोई बेईमानी, कोई बदमाशी, ज़्यादा कुछ की भी नहीं, और जो चीज़ सेफ रखनी थी उसको प्रॉपर किया। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आप जो है वो कोई भी चीज़ की प्रिवेंशन रखें वो ज़्यादा अच्छा है। और इस तरह से जो बोला, लड़कियों की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उन्हें अपनी फ़ोटो और अपने आप को दिखाने में बहुत अच्छा लगता है, पर जहाँ दिखाना हो वहीं दिखाया जाए। इसको समझ लिया जाए जो सर ने बताया। E-commerce वेबसाइट है अभी जो सुविधा दे रही ई-कॉमर्स की, उनसे एक लाइजन करके बात करी है कि आपके साथ कोई ATM कार्ड से संबंधित धोखाधड़ी हो गई या डेबिट कार्ड से संबंधित कोई धोखाधड़ी हो गई तो बैंक कर्मचारी बन के फ़ोन करते हैं कि आपका एक पासवर्ड खत्म होने वाला है या क्रेडिट कार्ड का पासवर्ड चेंज होने वाला है, और आपको सूचना रहे तो फिर आपके पास SMS आया तो इतने पैसे आप निकल गए पैसे। यदि विदिन 24 आवर्स यदि आप अब्यूज की कंप्लेंट करते हैं तो आपके खाते में वापस रिवर्स एंट्री उसमें पैसे ही करा देते हैं। ये हमने नया सिस्टम शुरू किया है। तो पिछले 3 महीने में करीब हम 50 लाख रुपये करा के वो वापस रिवर्स एंट्री करा दें। तो बदलने में शर्त यही है कि विदिन 24 आवर्स ई-कॉमर्स कंपनी से आश्वासन ले रखे हैं कि ऐसे ट्रांजेक्शन को आप कंफर्म जब भी करेंगे 24 घंटे में उसकी कोई कंप्लेंट नहीं आती। 24 घंटे के अंदर आप तुरंत हमारे साइबर क्राइम पुलिस से आगे कंप्लेंट कर देते हैं कि साहब भी मेरे पास फोन आया था, जो भी हुआ था, अभी भी मेरे पास SMS आया कि ट्रांजेक्शन हो गया है, ये मैंने नहीं किया है, तो उसकी कंप्लेंट हम हाथों संबंधित गेटवे वो करते हैं। तो ट्रांजेक्शन की इमीडिएट बात रहती है कि इन्फॉर्मेशन कितना टाइम लगता है? आपके पास SMS तुरंत आता ही है, ट्रांजेक्शन का SMS विदिन 5 मिनट आ जाता है। उसके बाद में 24 आवर मिलते हैं, सफिशिएंट टाइम, बहुत अच्छा समय है। So now we thanks very keen informations. अब आपको hopefully all the pros and cons के बारे में पता है। See, an example, sir has given to you to keep into your pocket for the mobile, right? Hello. You will be getting the publication with all the details right now. Now I tell Mr. Prahlad Kabra to give a certificate of participation to Sanjay Vyani for coordinating us with this show and for awaiting you all about the cyber crime. And SK Jalan, who is sir, please come up on the stage.
सब लेना चाहेंगे पब्लिकेशन? वेरी गुड. सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी. और this certificate of participation, and please take care. And one more thing I wish to tell you, see, you all are youth, you have parents at your home, you have friends, okay, you are too lucky that you got the time to get all this knowledge. Please make them all aware of it. Parents आज के दिन e-commerce